Dear friends, I'm sure all of you are aware of the kind of statements and the drama being played by the heir apparent from the Congress party has been enacted. And Mr. Rahul Gandhi is really not new to this sort of drama. If you can recall what happened during UP election, the manner in which the lists were torn, and we see a sequel of the same series. And a sequel of the same series comes on the eve of 2014 election. And in that sequel, we must understand that the Congress party is trying to project an image and which is worth watching, and that is mockery of the democracy, that government can be wrong, cabinet can be wrong, and not just once but twice, but the dynastic family can do no wrong. On all the correct decisions can only be taken by the dynastic family. And it is in this sequence we must understand that this is a serious damage control exercise initiated by the Congress party, though the reaction is much belated. And the timeline actually speaks for itself as to how decisions are made and why decisions are made. An interesting part is the press conference is called in somebody else's name, and the gentleman just walks inside the hall. So nobody has to know as to where the dynastic family or the members move, when they are going to move or call for the press conference, and when certain decisions, if at all, will be taken or not taken. And in that context, today's episode needs to be understood. The episode starts from the fact that not once, on many occasions, the Prime Minister of this country has expressed himself that he is willing to work under the leadership of Mr. Rahul Gandhi. The question then is that not just in the form of ordinance, but first a bill and then an ordinance. That means the nonsense was getting perpetuated twice, not once. And the leadership of Mr. Rahul Gandhi was not available on all this while and was happening right under his nose. Where the desperate leader was, we don't know, but definitely the desperate attempt is for everyone to see, and that is credit seeking. And in that credit seeking or grandstanding, whatever one may choose to call it, that after the leader of opposition of both houses went and met the president, there was a late night meeting in the President House of two ministers. And post that, this morning also certain visits have happened. Now what really transpired in the President House, only the President can say, or his office can speak. But as we have seen in the past, at the time of APJ Kalam, that he never took credit of what really transpired in the President's house, maybe we'll see the similar result even this time. And this time, the exercise was that in all likelihood, the President was not going to give his assent. And if the ordinance was going to be sent back, then this was the most opportune moment to project Mr. Gandhi, even at the cost of the Prime Minister and even at the cost of the government of the day. And to evade the responsibility, because all the wrong things lie on the head of the Prime Minister and on the right things go to Mrs. Gandhi's share. Similarly, the right things are happening, and the future, which is imperfect for this country, only a Gandhiskian can correct the same. And it is that exercise which is very, very apparent. And we can see that there are very many controversial issues. Even in the past we have seen, whether it was Lokpal, extension of time, his personal opinion, which has not seen the day, which has not seen the light of the day. And if
if Prime Minister Mr. Manmohan Singh has any self-respect left, then I think you should call it a day, because the super cop who can correct the system has arrived on the scene. And Congress extended the session of Lokpal Parliament for passing of the Lokpal twice, but nothing happened. In this case, first the bill and then the ordinance, a wrong was perpetuated twice, identical lines, and we don't know what really will be seen, because there is an atmosphere in the country today to correct the system. And Congress, which has done all possible wrongs for past 9 years, a government headed by the dynasty, and Prime Minister is only a face, like the diarchical system of the British India. Similar system is getting perpetuated. Diarchy, the face is somebody else, and the real powers vest with somebody else. In that light, in that context, the entire controversy surrounding Mr. Gandhi's statement needs to be seen. And I go back to my first statement with which I opened the address, and that was that government can be wrong, cabinet can be wrong, everybody can be wrong, but the dynastic family can do no wrong. And that is the Congress mantra. I would welcome any questions if... Okay. मित्रों, जो आज आपने उत्तर प्रदेश में शुरू हुई इलेक्शन के दौरान नौटंकी का दूसरा भाग देखा, वो हम सब के सामने है, क्योंकि 2014 के जो चुनाव हैं वो भी पास हैं। एक बार मंच पर खड़े होकर लिस्ट फाड़ी गई थी और आज ऑर्डिनेंस फाड़ने की नौटंकी हुई, और समय जो है वो सबको अंदाज़ा देता है, अंदेशा देता है कि इसके पीछे कांग्रेस की किस प्रकार की साजिश रही है। और वो साजिश जो है वो भी स्पष्ट है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, पहले एक बिल के रूप में और उसके बाद एक ऑर्डिनेंस के रूप में उस गलती को दोहराया गया। और प्रधानमंत्री एक बार नहीं कई बार ये बात कह चुके हैं कि वो अब तक सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में काम करते हैं और उन्हें कोई हिचक नहीं है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम करने की। तो जब राहुल गांधी जी का नेतृत्व प्राप्त नहीं हुआ या प्राप्त हुआ और उसके बाद ही बिल और ऑर्डिनेंस बने, या प्राप्त नहीं हुआ समय अनुसार या समय रहते, तो वो तो तैयार थे उनके नेतृत्व में काम करने के लिए। तो देश की जनता ये जानना चाहती है कि राहुल गांधी जी का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी को क्यों प्राप्त नहीं हुआ। और अब जब नेता प्रतिपक्ष दोनों सदनों के, पार्टी के अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता राष्ट्रपति से मिलकर आए और उन्होंने अपनी व्यथा राष्ट्रपति को सुनाई और उनके हस्तक्षेप की मांग की, और बावजूद उस हस्तक्षेप के कल रात में 2 मंत्रियों को बुलाया गया और बैठक हुई। आज सुबह से भी बैठकें चलती रहीं और उसके बाद इस तरीके का निर्णय हुआ। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सूचना के अनुसार नहीं थी, किसी और की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रथम meet the press is one and the same thing, I guess. At Press Club of India, was it announced that Mr. Rahul Gandhi will be there? That is exactly my point. It was to be headed by Mr. Ajay Maken, and that is the point I'm trying to make. And I'll give you the opportunity to ask questions and clarify it from me. तो एक प्रथम परिवार के लोग कब कहाँ चले जाते हैं, कब कहाँ दर्शन दे देते हैं, किसी को उसकी जानकारी उपलब्ध होना आवश्यक नहीं है, और कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं। तो उसी प्रकट होने के स्वरूप में वो प्रकट हुए आज अजय माकन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
और उन्होंने अपना पक्ष आपके मित्रों के समक्ष रखा और हमें भी ज्ञात हुआ, और उसी ज्ञान प्राप्ति के बाद हमने भी सोचा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जो विचार हैं आपके साथ शेयर करें, बांटें और भाग लें इस समय पर कि भारत की जो इस समय राजनीतिक दृष्टि है वो किस तरफ है, और भारत और समाज की जो दृष्टि है वो एक तरफ स्पष्ट है, और वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जिस तरीके से 9 सालों की सरकार चली है, जिस तरीके से 8.6 की और $200 बिलियन की इनको मिली थी एक सक्सेशन इनहेरिटेंस एनडीए से, उसको किस तरीके से खराब किया गया है, और इतना भ्रष्टाचार इस देश ने देखा है जो पहले कभी नहीं देखा। तो अब चाहे कहीं भी दर्शन हो, प्रकट हो, या किसी भी चीज का श्रेय लेना चाहें, मगर जो पाप की भागीदारी है पिछले 9.5 वर्षों की, वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है, और देश की जनता उसको बहुत अच्छी तरह जानती है, समझती है। लेकिन एक बात स्पष्ट जरूर हुई है, और वो यह स्पष्ट हुई है कि कांग्रेस पार्टी का एक ही मंत्र है कि सरकार गलत हो सकती है, मंत्री जो हैं वो गलत हो सकते हैं, कैबिनेट गलत हो सकती है, और एक बार नहीं 2-2 बार गलत हो सकती है, कई बार गलत हो सकती है, लेकिन जो प्रथम परिवार के परिवारजन हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। सब पाप बाकी के सर पर और सब अच्छे कर्म इनके हिस्से के हैं, ये बात जरूर स्पष्ट हो जाती है आज की प्रेस मीट के अनुसार। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहूंगी मैं। अब आपके किसी के भी कोई प्रश्न हो, मैं आपको उत्तर देने के लिए तैयार हूं। देखिए, जितनी महंगाई और भ्रष्टाचार इस देश में फैला हुआ है, तो अब आप जिसको युवा कह रहे हैं, तो पहले तो मेरा प्रश्न वही है, क्योंकि वो मेरी युवा की परिभाषा क्या है वो मुझे नहीं मालूम, मगर मैं अपने आप को मध्य आयु वर्ग की मानती हूँ। वो मेरे से मुश्किल से 1 या 1.5 साल छोटे हैं, और मेरे बच्चे जो हैं वो 19 और 18 साल के, जो आज के युवा हैं। तो आपकी युवा की परिभाषा मैं नहीं जानती, लेकिन जहाँ तक प्रश्न है इस सवाल का, तो वो मैं आपको ज़रूर देना चाहती हूँ कि उनको हमारा समर्थन करना चाहिए था। जब हम राष्ट्रपति के पास गए, वो भी हमारे साथ जाते, वो समय नहीं था उनके पास। उससे पहले जब ऑर्डिनेंस आई, उससे पहले जब बिल पे बात हुई, तो उन्होंने अपना नेतृत्व नहीं दिया। उस बात पर मैं प्रश्न चिन्ह लगा रही हूँ, और सारे समय पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हूँ। समर्थन किसको किसका करना चाहिए वो आप बेहतर समझते हैं। I assume from the timeline, and it is only an assumption, that this was fixed, and this was fixed at the President's house, that he is not going to give an assent. And I remember correctly that I was in a TV studio last evening where from the editorial the messages were coming that the government is likely to withdraw the ordinance, and it is late in the evening last evening. And thereafter, this morning, again, there was a parley of meetings. You see the number of people who have visited the President's house. And it is in that context that President is not going to sign the ordinance. Now, the credit needs to be given to someone. Why should it be the BJP? Why should it be the opposition? Let it go and establish somebody's credibility. Mr. Majumdar. देखिए एक ये प्रधानमंत्री जी का जो अपमान है उससे हम बहुत चिंतित हैं, और आज से नहीं, पिछले 9 सालों से।
ये पहला ऐसा फैसला नहीं है या पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री पद का अपमान हो। और प्रधानमंत्री पद का जहां तक अपमान का विषय है, वो तो किसी भी सेंटर पर कंट्रोल किसी और के पास और खाली एक पपेट प्रधानमंत्री बैठेगा तो अपमान तो उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से नियुक्ति होती है ऐसे व्यक्तियों की ऐसे पदों के लिए। एक सेकंड। Come again, please. Obviously, it is the BJP because BJP has prevailed over the has prevailed and brought some sanity to political discourse. And it is only after the BJP met the president, and I'm sure the president has has communicated his dissent on a particular note. Then this is a case of sharing credit, and we saw that even during APJ Kalam Sahab's also tenure. We've seen that how great sacrifice was made. We've seen it. This is a repeat, and that's why I call it a sequel. Yeah, Mr. Rajiv. No, we are against the content of the ordinance also. And we've made it very clear. It is, you see, there are two wrongs. One wrong is the methodology adopted in a democratic polity, and the second is the content also. We are against the content. And we've made it clear. I don't know what was, I also saw some debates being done on certain TV channels, which of course, I think a perpetuation of wrong which is going on, but I will not go into those details. But we are against the content along with the methodology adopted, both. And the leader of opposition has made it very, very clear, not once, many a times, and in fact tweeted about it. Why not? That's part of our constitutional mandate. That's part of the parliamentary procedure. Why not? Who will, I'm sorry, you're entering into a wrong argument. You want to say that Parliament is not the right place to make laws? Parliament is the place to make laws. And laws are made in the Parliament. Supreme Court can direct us to function in a certain way, but it is the prerogative of the Parliament to make laws, and it is the standing committee which makes laws, or at least proposes, and then finally it is passed in the Parliament. So being part of the standing committee, I'm only doing my constitutional and parliamentary duty. Yeah, Mr. Vikrant Yadav. Yeah. No. Mr. Vikrant Yadav. देखिए, आप मेरी पार्टी को जब उदाहरण पेश करने की बात करते हैं तो मुझे आपकी दोमुई राजनीति कहीं ना कहीं स्पष्ट होती है, और उसका कारण है कि आपने ये प्रश्न कभी सुरेश कलमाडी, कनिमोई या ऐसे तमाम लोग हैं उनके पक्ष में नहीं पूछे। पहली चीज, जहां तक बोकाडिया का सवाल है, तो जो भी कोर्ट कचहरी में वो मामला अभी पेंडिंग है, और पुराने कानून के मुताबिक जो भी उनके हिस्से का होगा, जो भी देश का कानून है, उसका हम समर्थन करते हैं। और एक कहावत है, कहावत नहीं बल्कि श्लोक है गीता का, कि जब आप किसी भी रण में होते हैं, किसी वॉर में होते हैं, लड़ाई में होते हैं, तो जो उस लड़ाई का कायदा कानून है, यथा साठ्यम तथा साठ्यम, तो जो आपके साथ कोई करेगा वैसा ही आपको जवाब देना है। तो वहां पर हम कोई मंदिर नहीं चला रहे हैं, कोई धर्मशाला नहीं है, राजनीति है। और उस लड़ाई के दौरान ऐसा नहीं है कि एक अस्त्र शस्त्र प्रयोग करेगा और हम सारे हथियार रख के खड़े होंगे। तो आप समाज को साफ करें, उसकी हम मांग करते हैं, उसके हम साथ खड़े हैं, और जो भी देश का कानून है उसके तहत सर उठाकर और नमन उस देश के कानून को हम करते हैं और उसका स्वागत भी करते हैं। Yeah, Mr. I really don't think so. Of course, this is an attempt to give credit and give credit to the dynastic polity of the country and dynastic polity of the Congress party.
but Mr. Rahul Gandhi's name has not yet been announced by the Congress party as the prime ministerial candidate, and like you, we all are awaiting that. But this definitely is an attempt to 2014 elections, and this is in that context we have to see that in all likelihood President was rejecting the ordinance and not going to sign the ordinance, and he communicated that, and because he communicated that, then the question came, who takes the credit for that withdrawal? And the withdrawal came only through withdrawal can only, all the correct things can only be done by the first family. Mr. Rathi. नहीं, वो तो जी उनका विश्वास मनमोहन सिंह में नहीं रहा, और वो लगातार इस तरीके की चीजें भ्रमित करने के लिए उड़ाते रहते हैं, क्योंकि अगर जहां तक सत्ता में विश्वास था और ये जो सुपर कॉप एकदम से सीन पर अपीयर हुए हैं, तो वो तो बिल और ऑर्डिनेंस दोनों के समय समक्ष अपने आप को प्रकट कर सकते थे और इस बात को दुरुस्त कर सकते थे। तो वो प्रकट उस समय नहीं हुए जब राष्ट्रपति ने शायद इनकार कर दिया, तब ये सब व्यवस्था बनी। तो उसी से जाहिर होता है कि किस तरीके की राजनीति और रणनीति कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है। मैडम आपका द लेडी इन पिंक। किससे बात किया था? नहीं मैम, नहीं, हम गलत। देखिए यही दिक्कत है, हमने कोई साथ नहीं दिया, और मुझे नहीं मालूम कि ये खबरें किस तरीके से चल रही हैं। स्टैंडिंग कमेटी बनने की बात हुई, एक स्टैंडिंग कमेटी का हम हिस्सा बने, क्योंकि वो हमारा एक लोकतांत्रिक ड्यूटी है, एक संसदीय ड्यूटी है। आप संसद में हैं तो आप काम करते हैं, एब्सेंट नहीं रहते। 25% 35% आपकी उपस्थिति नहीं हो सकती, लेकिन आप वहां उपस्थित ही नहीं रहते, आप काम करते। और काम करने के साथ जब विचार की बात आई कि इसको, क्योंकि एक पक्ष नहीं है, किस तरीके के गुनाह, किस तरीके के लोग, कन्विक्शन किसको करना है, उसकी जो बारीकी है उस पक्ष की, उसको तो आप बयान करेंगे ना, तो कानून तो संसद ही बनाएगी, और आप उस स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा बने। तो स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा बनना और इस ऑर्डिनेंस की सपोर्ट करना, दोनों में अंतर है। और कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से ये फैलाया गया, और आज वो बराबरी करने का समय नहीं है कि कांग्रेस भी ऐसे है और भाजपा उसके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, वो गलत है। भाजपा कभी उसके साथ नहीं खड़ी थी और भाजपा ने हमेशा विरोध किया, लेकिन बारीकियों पर तो आप काम करेंगे ना, कि अपील के वक्त क्या होगा, चार्ज के समय क्या होगा, अगर अपील एडमिट हो जाती है तो कितने दिन में एडमिट होगी, और अगर जो जजमेंट है वो सेंटेंस के लिए अपील हुआ है या पूरा जजमेंट हुआ है, उसकी बहुत सारी बारीकियां हैं दस्तावेज की। तो दस्तावेज की बारीकियों पे काम संसद करेगी, या तो कोर्ट कानून बनाने का भी काम ले ले तो बात अलग है, मगर आज की तारीख में वो काम सिर्फ संसद के हाथ में है। मिस्टर हरीश लखेड़ा, एक्सक्यूज मी, मिस्टर हरीश लखेड़ा। जी, देखिए, वो मैं कई लोगों को कह कर आई हूं कि वो जैसे ही जजमेंट अपलोड हो या किसी भी तरीके से मिले, कृपया करके उसको भेज दीजिए, क्योंकि फिर वही बात है कि जजमेंट को हमने बारीकी से नहीं पढ़ा, जो थोड़ा बहुत सुनाई दिया उससे, और उसमें जो सुनाई दिया कोर्ट ने अपने उसमें कहा है, मतलब उसमें जजमेंट में कि ये 2 लाइन कि इससे जो है नो वोट की ऑप्शन देने से हर पार्टी पर दबाव बनेगा स्पष्ट और स्वच्छ छवि के कैंडिडेट्स को मैदान में लाने का। तो जाहिर सी बात है हम उसका समर्थन करते हैं और हम उसके बिल्कुल साथ खड़े हैं, उसका पूरी तरीके से स्वागत करते हैं। लेकिन इसी का एक दूसरा पक्ष है, और वो दूसरा पक्ष है कि अगर इस तरीके के फैसलों से क्योंकि आपके यहाँ पे एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो अगर 10 पार्टी 10 कैंडिडेट खड़े हैं, विभाजन कैसे होता है वोट्स का, उसकी जो फिर वही बात आती है बारीकी क्या है जजमेंट की,
और उदासीनता लाता है राजनीति में, तो जाहिर सी बात है हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए, वोट करें और स्पष्ट तरीके से कैंडिडेट चुने। हम बिल्कुल पक्षधारी हैं, स्वच्छ छवि के कैंडिडेट मैदान में उतारे जाएं, राजनीति स्वच्छ हो, पैसे का इस्तेमाल कम से कम हो। हम ऐसी हर चीज के लिए साथ खड़े हैं जो देश के हित में है, लेकिन जजमेंट की बारीकी हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, तो उसकी जो एक स्वरूप के माध्यम से प्रतिक्रिया होगी वो जजमेंट पढ़ने के बाद ही होगी। लेकिन अगर जहां तक फैसला है कि स्वच्छ छवि के लोग राजनीति में आए, हम उसका स्वागत करते हैं और हम भी यही चाहते हैं। देखिए, उसकी इम्प्लीकेशन, सोशल इम्प्लीकेशंस भी आप देखेंगे ना। आप सोशल इम्प्लीकेशंस देखेंगे, बहुत तरीके की सोशल इम्प्लीकेशंस हैं। अब हर जगह जो सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं पहुंच पाता देश के हर कोने में। हमारी पार्टी के बहुत सारे तमाम राज्यों में राइट टू रिकॉल पहले से उपलब्ध है, छोटे चुनावों में, तो वो एक पक्ष है, वो आपको देखना होगा, मगर उसको हम भी देखेंगे। मेरी पार्टी को तो पीस पार्टी, भाजपा में तो पीस पार्टी तकरीबन मर्ज हो गई, सिवाय उनके जो प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ, उनको छोड़कर। तो आप लोगों ने खबर ही नहीं बनाई। मगर हमारे यहाँ तो रोज ये हो रहा है, 50 उलमा नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, और उसका कारण एक है कि कहीं ना कहीं देश में लोकतंत्र ने गहरी जड़ें स्थापित की हैं, और जो भ्रष्ट लोग भ्रष्टाचार का बुर्का पहनकर लगातार इस देश को लूट रहे हैं और गुलामी की तरफ बढ़ा रहे हैं, वो लोग सांप्रदायिक असंप्रदायिक इस तरीके से जनता को भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है, और वो है रोजी रोटी कपड़ा मकान। और जब रोजी रोटी कपड़ा मकान की बात आती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से विकास का मॉडल और विकास कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के ही हिस्सा हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि वो चाहे मोदी जी के नाम पर जुड़े या XYZ के नाम पर जुड़े, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हम उन सबका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।